Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Sodas for termination. After Colorado, we did some digging into Soda's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Sodas, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Welcome to Hokkaido, 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite, outside the law if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Sodas in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Sodas is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिटमैन 1 के आखिरी अंतिम दमदार एपिसोड पे। और आज एजेंट 47 आ चुका है होक्काइडो जापान में। और जैसा कि हमको ये रूम अलॉट किया गया है, हम आए हैं गामा नाम के एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल कह लो या फिर एक बहुत ही अत्याधुनिक मेडिकल जो फैसिलिटी आप कह सकते हो, जो कि स्थित है जापान होक्काइडो में। और बाय गॉड द सीनरी इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। और ये जो माउंटेन है ना, ये मुझे माउंट फूजी की याद दिला रहा है। वैसे माउंट फूजी एक वॉल्केनो है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन ये एक एक्टिव वॉल्केनो तो मुझे नहीं लग रहा, ये एक सामान्य माउंटेन है। और वो दूर फायरवर्क्स भी हमें दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल रिवर भी यहाँ से गुज़र रहा है। और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य इस गेम में फीचर किया गया है। और हाँ, जापान के बारे में मैं कुछ कह लूँ नहीं, उससे पहले यह है गामा मिशन में आए हैं, तो मिशन के बारे में ही चर्चा करेंगे पहले। और ठीक है, इंटेल गैदर करेंगे। और वैसे यहाँ आज जो टारगेट्स है, जो 2 टारगेट्स हमें अलॉट किए गए हैं, एक तो है मिस युकी यामाज़ाकी, और मैडम जी को हम पहले लेंगे, मैडम जी की हम जान पहले लेंगे। और जो दूसरा टारगेट है वो है एरिक सोडस, वो जो गद्दार एरिक सोडस जिसने ICA को धोखा दिया है और अभी प्रोविडेंस में जा चुका है और प्रोविडेंस के लिए काम कर रहा है। और साथ ही साथ बहुत से इंटेल हमें मिला है एक साथ कि जो युकी यामाज़ाकी है वो एक टोक्यो लॉयर है जो कि केस लड़ रहा है सोडस के लिए। अच्छा, नो की कार्स आर नीडेड। बहुत ही अत्याधुनिक ये फैसिलिटी है यहाँ पर। और ठीक है, यहाँ पे ये किसका रूम है? अच्छा, नहीं जा सकते, राइट। इसका मतलब हम तो यहाँ पे टोबाइस रिपर नाम से रुके हुए हैं और हमें भी एक अपना प्राइवेट रूम अलॉट किया गया है और इसलिए हम किसी और के रूम में नहीं जा सकते। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे ओके, ये जापानीज स्टाइल में संबोधन। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कीज़ नहीं लगता, जो की कार्ड होता है ना, जैसे कि बैंकॉक वाले एपिसोड में और थाईलैंड वाले एपिसोड में जो की कार्ड्स हर जगह पे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे की कार्ड्स की कोई बात नहीं है। और भाई साहब
टेक्निकल टॉयलेट, चला के देखते हैं। एरिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, धरती की। लेकिन ये प्यारा है नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छुप के खड़े रहते हैं और ठीक है, इन भाई साहब को हम छोड़ देते हैं। इनको हम कुछ करने नहीं वाले क्योंकि ओके। तो यहाँ पे एक आदमी हग रहा है मेरे ख्याल से, या फिर ये दुखी है। ओह सॉरी, ये हग रहा है। तो अभी हमें मारना है मिस युकी यामाज़ाकी को और एरिक सोडस को, जो कि मोस्ट वांटेड टारगेट है अभी के लिए हमारे लिए, क्योंकि उसने आईसीए को धोखा दिया है, राइट। तो उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। साकुरा सुशी, और राइट। तो यहाँ पे सुशी मतलब खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है मेरे ख्याल से। और अभी हम टोबायस रिपर से यहाँ पे घूम रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं है, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो और ये सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदे हैं। वैसे देखने में तो यार किसी भी एंगल से जापानीज़ मुझे नहीं लग रहा। तो जापानीज़ बंदा यहाँ पे सिक्योरिटी में नहीं लगा क्या? इन बंदों को थोड़ा देखो। ये लोग तो जापानीज़ मुझे लग रहा है। हाँ, इनका हेयर स्टाइल और इनका तो, अरे यार अभी मुंह तो थोड़ा सा दिखाओ। हाँ भाई, ये लोग जापानीज़ है, वेरी गुड। और फिलहाल मैं इधर उधर की बातें करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। इंटेल, अच्छा इससे क्या इंटेल हमें मिलने वाला है? 47, I have intel. अच्छा, Well, this is quite fascinating. The bandaged patient is Jason Portman, former CEO of Quantum Leap. According to my intel, he has undergone full facial reconstruction and is scheduled for bandage removal today. And get this, he's going for the full Helmut Kruger look. ओके। तो यहाँ पर हमारा ये जो भाई है वो हेलमेट क्रूगर का डिस्गाइज लेना चाहता है। डिस्गाइज नहीं, हेलमेट क्रूगर का लुक लेना चाहता है। और हमारे इस भाई साहब को लग रहा है कि हम बिल्कुल हेलमेट क्रूगर जैसा दिखते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और मुझे इसका अभी डिस्गाइज लेना है ताकि मेरे ख्याल से मैं सोडस तक या फिर युकी यामाज़ाकी तक पहुंच पाऊँ। और ये दरवाज़ा बस बंद हो जाए एक बार, फिर मैं लूँगा इनका। तो मुझे डिसअपेयर करेगा, तेरी इतनी मजाल। ओके, क्राइम नोटिस किसने देखा? ओके, तो युकी यामाज़ाकी यहीं पर है। और फ़िलहाल मैं बॉडी को थोड़ा सा साइड कर देना चाहता हूँ। और लो भाई, और डिस्गाइज पहले चाहिए। ओके, दरवाज़ा भी फटाफट बंद हो चुका है और डिस्गाइज भी हमें मिल चुका है मिस्टर जेसन पोर्टमैन की। और मिस्टर जेसन पोर्टमैन जो अपना जो थोबड़ा है, अपना जो हुलिया है, वो बिल्कुल हेलमुट क्रूगर जैसा बनाना चाहता है। आपको शायद याद होगा पेरिस वाले एपिसोड में मैं दिखा था हेलमुट क्रूगर। ओके, तो अभी हम जेसन पोर्टमैन बने हैं। अच्छा, तो ओके ओके, तो ये है, ठीक है। फॉलो द डॉक्टर। ओके मैडम जी, ओके। वैसे आप लोगों से कुछ खास उम्मीदें तो है नहीं मुझे, क्योंकि एआई से आप लोग यहाँ पे चिकित्सा करवाते हो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे फ्रिस्क करने के लिए नहीं कहा मैडम जी ने। और वैसे मेरे पास क्या क्या है इन्वेंट्री में? What the? Your inventory is empty? What the hell, man? मेरे पास कुछ नहीं है। और ये छोटा सा प्यारा सा एक बुद्धा भी हमें दिख चुका है। और फॉलो द डॉक्टर, ठीक है। तो मैडम जी कहाँ पर जाइएगा आप? ओके, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है। ओके, ठीक है। फिलहाल मैं डॉक्टर मैडम को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। वैसे जापानीज गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, जैसा कि हमें इंटेल मिला है इस फैसिलिटी के बारे में। तो इसका मतलब ये जो फैसिलिटी है वो एक तरीके से जापानीज गवर्नमेंट को भी नहीं पता। इसका मतलब ये इलीगल है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग ये फैसिलिटी रन कर रहे हैं। तो ओके मैडम जी, इस तरफ चली गई, ठीक है। चलिए मैडम जी। कितनी बातें करती है मैडम जी, थोड़ा कम बोला करो। हो गया, अब कब तक फॉलो करना है यार?
वैसे जापान के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ एनिमे। वैसे पहले तो बहुत देखा करता था, लेकिन अभी हफ्ते में बस एक ही एपिसोड देख पाता हूँ। अभी मैं हाईक्यू देख रहा हूँ और इसलिए जापान के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो मेरे पास है, जापानीज कल्चर के बारे में। Smart way to get Okay, inside, thank you, madam जी। 47. Well done. ओके, अच्छा ठीक है, तो अब समझ में आया। और ये वाइट बोर्ड में यहाँ पे ब्रेन सेल्स के ऊपर शायद रिसर्च किया गया है। इसे देखकर मेरी कॉलेज के दिनों के याद आ गई यार, 1 साल पहले की बात है। Thank you तो for waiting. If you can just sit down for a moment, I'll get started right away. ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या फॉल्ट नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पे बैठना है। और मेरे ख्याल से ये जो भाई साहब है हमारे, let's have a look at ये you, Mr. बैंडेज Portman. उतारने वाले हैं हमारे Be still चेहरे से। as I remove और the bandages. Oh my! It's astonishing. Not only are you the spitting image of Helmut Kruger, the swelling is completely subsided and there's not a trace of bruising. If I didn't know any better, I'd say you'd never undergone surgery. It's और वहाँ पे दंड पेलू बॉडी बनाई जा रही है। simply perfect. I'm sorry. This is very emotional for me. तो ये जो यहाँ पे भाई साहब हमारे हैं, ये बिल्कुल भौचक्का रह गए हैं, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद नहीं था कि एआई इतना बेहतरीन काम कर देगा। जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है जेसन पोर्टमैन की, वो बिल्कुल हेलमुट क्रूगर इसे बना देगा। लेकिन भाई साहब एआई नहीं है, ये स्वयं एजेंट 47 है, खतरनाक टकलू जो कि घुस आया है तुम्हारे इस इलीगल फैसिलिटी में। और ये क्या है? ऑल राइट, टॉक्सिन क्या है ये? बोटुलिनम टॉक्सिन होगा, कुछ जहर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जिम का पूरा बंदोबस्त किया गया है, ठीक है। और लेकिन मेरे ख्याल से वो जहर हमें चाहिए होगा और वो जहर हमें कैसे ना कैसे करके लेना होगा। तो क्या करूँ, किसी का डिस्गाइज चाहिए। अभी तो मैं जेसन पोर्टमैन बना हूँ, तो इसलिए कोई भी बंदा हम पे ज़्यादा शक नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये फ़ोन में अपने महबूबा से बातें कर रहे हैं यार। और जा सकते, ये बंदा हम पे शक कर सकता है। अरे यार, मैंने मैप ऑफ कर दिया था, राइट। ओह शिट, तो मैप तो नहीं दिख रहा हमें। इसका मतलब हमें ये बात कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाने से कहाँ हमें जाना है और कहाँ नहीं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ ट्रेसपासिंग हो रहा है और कहाँ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ बंदे हैं, हमें इंटेल चाहिए। तो एक इंटेल को फॉलो करके हम करीब तो पहुँच चुके हैं, वो रहा सोडस। इसका मतलब सोडस के करीब तो हम पहुँच चुके हैं। और लेकिन अभी क्या करना है हमें? अभी एक ना डिस्गाइज चाहिए हमें। इन सिक्योरिटी वाले बंदों का अगर डिस्गाइज हमें मिल जाए कहीं से, तो भाई मज़ा आ जाए। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वॉशरूम है, ठीक है, वॉशरूम है। सो जाइए, बहुत ही बेहतरीन। और बॉडी इस तरफ ला के रख देता हूँ। यहाँ पे कमोड है और दरवाज़ा खोलो। और यहाँ पे ना ये भाई साहब है, तो ठीक है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। नल खोल दो भाई। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था? ओके, यहाँ पे सर जी आ रहे हैं। और ठीक है, You have anything to do with this? Yeah, you, Mr. Shifty, look at me. बहुत बढ़िया। पहले तो कपड़ा दो, उसके बाद पिस्टल दो और जाओ जाके मल्लो मल्ली करो। ये जब इन्हें होश आएगा तब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो इसे बंद करना चाहता हूँ मैं, लेकिन बंद हो नहीं रहा और दरवाज़ा भी यहाँ पे बंद हो चुका है। तो सही है। वैसे इस डिस्गाइज में मेरे ऊपर शक तो कर सकते हैं कुछ बंदे, तो हमें उनसे परहेज़ करना पड़ेगा, उनके नज़दीक जाने से। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अभी हमें सोडस तक पहुंचना है और यहाँ पर तो हमें कोई भी शक नहीं करने वाला। ओह बॉय, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे साइन बन कर रहा है। ये देखिए, ये भी रेड हो चुका है। इसका मतलब हम इस रूम के अंदर नहीं जा सकते। मतलब इसका मतलब हमें शायद डॉक्टर्स का डिस्कस लेना पड़ेगा इस रूम के अंदर जाने के लिए। ठीक है मेरे भाई,
ओके, तो वहाँ पर एक इंटेल है। चलिए 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 जाके देखते हैं इंटेल क्या है। 47, I have intel. अच्छा, I managed to gather intel from the hospital's security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, seems to have frequent rendezvous with the helicopter pilot near the remote personnel exit. And rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. ओके भाई, मतलब यहाँ पे जो चीफ सर्जन है उसका जो हाथ है वो कब जाता है सर्जरी करते वक्त, बड़ा डरपोक बंदा होगा। तो हमें इसका डिस्गाइज चाहिए, ठीक है? कोई देख तो नहीं रहा ना? निपटा देते हैं इसे जल्दी जल्दी और फटाफट से डिस्गाइज ले लेते हैं। और यहाँ पे एक बंदा शायद सो रहा है घर के अंदर भाई, तो फटाफट से बॉडी लेते हैं और बॉडी लेकर इस घर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि ये माली मुझे देख सकता है। तो भाई साहब तुम सो रहे हो? किस बात की तनख्वाह लेते हो? किस बात की तनख्वाह लेते हो? हाँ, सोने के लिए? ठीक है गाइस, तो गोली भी हमें मिल चुका है और चलो तुम दोनों यहाँ पे मल्लो मल्ली करो। और यहाँ पे कुछ है पॉइजन। ओके ओके ओके, इसका मतलब हमें वो पॉइजन चाहिए, ठीक है? और उस पॉइजन को लेने के लिए मेरे ख्याल से कुछ तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उस पॉइजन को पहले हमें लेकर आना पड़ेगा, राइट? तो क्या हम इस डिस्क का इसमें पॉइजन तक पहुंच पाएंगे? उस रूम के अंदर है पॉइजन। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे चेकिंग होगा हमारा, और यहाँ पे हमारा चेकिंग होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदूक है वो मैं कहीं साइड में ड्रॉप कर दूँ, लेकिन ओके यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है? यहीं पे। लेकिन यहाँ पे क्या है ये? ओके, तो इस घर के अंदर अगर कोई आता है तो हम पकड़े जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक क्रोबार है, ले लेते हैं। और क्रोबार तो कोई इलीगल आइटम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस साइड में थोड़ा सा साइड करके अपना जो पिस्टल है वो रख देता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से पिस्टल तो हमने फेंक दिए, राइट? ओके, पिस्टल यहाँ पर है। तो अभी हम जा सकते हैं चेकअप करने के लिए, मतलब फ्रिस्क करने के लिए, जो ये लोग चेकिंग करने वाले हैं कि मेरे पास कोई इलीगल आइटम है या नहीं। मेरे पास कोई इलीगल आइटम नहीं है। चलो ठीक है, चलिए सर कर लीजिए चेकअप जो करना है। मेटल ऑब्जेक्ट क्रोबार है, लेकिन उससे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है अगर आप लोग कोऑपरेट करते हो तो, क्योंकि ओके, तो हम अंदर तो आ चुके हैं, राइट? इसका मतलब ओके, तो हम अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये बंदा हम पर शक कर सकता है, इसका मतलब हमें इससे बच के रहना पड़ेगा भाई। ओके 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 ओके, शांति शांति, ठीक है। चलो इस रूम के अंदर हम जा नहीं भाई, ये हम पर शक कर सकता है, तो एक काम कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ये जो 2 डिस्गाइज है ये भी हमारे पास आ चुका है। लेकिन इन दोनों डिस्गाइज मैं इन्हें ठिकाने लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा साइड करके रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगा। ओके, तो शायद से कॉरिडोर खाली है, ठीक है, वेरी गुड। तो बॉडी में यहाँ लाके रखना चाहता हूँ इस रूम के अंदर। इस रूम के अंदर मैं बॉडी को छुपाना चाहता हूँ, वेरी गुड। तो हमारे पास एक डॉक्टर का डिस्गाइज भी हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो ये भी हम पे शक कर सकता है, ये है स्लीपिंग विटनेसेस। जैसे ही ये लोग होश में आएंगे वैसे ही ये लोग हमारा पर्दाफाश कर देंगे कि भाई यहाँ पे एक बंदा है जो कि सबको नॉक डाउन कर रहा है, और जो है हु इज़ नन अदर देन एजेंट 47। तो एक और बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो शायद हमें देखते ही ओके एग्जामिन थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ तो इंटेल है कॉन्फिडेंशियल। अरे ये तो हम ही है ना?
टोबायस रिपर, अरे यार ये तो हमारे बारे में लिखा गया है। मिस्टर टोबायस पीक फिजिकल कंडीशन, हाँ वो तो होगा पीक फिजिकल कंडीशन, क्योंकि ये तो मास्टर असैसिन है। और फिजिकल चेकअप, स्टैंडर्ड फिजिकल चेकअप रिजल्ट्स इन द मैन इन हिज एज, कंडीशन चेक्स इन ऑल इन द ग्रीन। फिजिकली मिस्टर रिपर इज लाइक दैट ऑफ अ मैन इन हिज अर्ली 20s। ऑल राइट, Kai was asked to run all the test results through her algorithms twice. Okay. तो इसका मतलब एजेंट 47 40 उम्र का है, लेकिन एजेंट 47 का जो फिटनेस है वो बिल्कुल 20 साल के बच्चे की तरह है। वो तो होना ही है। और साथ ही साथ एजेंट 47 काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। Hey there, flyboy. तो ओके, तो Nails, Take your business elsewhere. ये मुझसे बातें कर रहा है। effect is waning. This way, Doc. I'll show you where my stash is. क्या? Hey, I get it. You're not an errand boy. मुझे इसे कहाँ लेके जाना है? Escort chief surgeon to the stash. ओके, तो आइए सर आइए। ओके ओके, नीचे मेरे ख्याल से उस घर के अंदर जाना है, लेकिन जहर तो मैंने लिया ही नहीं। What? I mean, I'm sure. अरे यार, It's a challenge. आइए सर। वैसे ज़रूरत नहीं है जहर लेने की, क्योंकि मेरे पास क्रोबार है, हम पीछे से ले लेंगे कपड़े। जान की बात तो नहीं है। हाँ भाई, एस्कॉर्ट चीफ सर्जन टू द स्टैश। मेरे ख्याल से डिस्गाइज ही हमें चाहिए। आइए सर आइए, पीछे आइए। आ रहे हैं ना? ठीक है, आइए। और ओ भाई साहब, मैंने गन भी दूर रखा है, तो बहुत ही बढ़िया। आइए सर। Me, I'm a lot more Here we are. refined. Help Okay. yourself. Thanks, Nails. तो You're a champion. क्या ये है? Easy does it, Doc. I'm fine. I can take it. लीजिए सर। Well done, 47. बहुत बढ़िया। This should provide you with the means to get close to sodas. इस रूम के अंदर ना आइयो बस, और कुछ लेने का नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं गन लूँगा और गन लेकर मैं जाऊँगा। दरवाज़ा बंद हो जाए बस। ऑलराइट गाइस, गन भी हमारे पास हो चुका है। और ये माली भाई ऊपर जा रहे हैं, और थैंक गॉड कि इसने इस रूम के अंदर जाना सही नहीं समझा, क्योंकि अगर ये चला जाता तो इसके लिए बुरा हो जाता, राइट। ओके, तो हम आराम से ऊपर जा रहे हैं, और सिक्योर प्लेस। ये चॉपर का जो ब्लेड्स है वो कुछ अजीब तरह का है, नहीं? ओ भाई, ये तो हमें शक कर सकता है। मैं देखा ही नहीं यार, फंसते बचे। ओ शिट, ये क्या बात हुई? ये हम पर शक कर सकता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक रास्ता है, जल्दी निकल लेते हैं, ठीक है यहाँ से। अभी यहाँ तो भाई कोई हम पे शक नहीं करेगा। यहाँ पे ओके गाइस, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है, और इन डॉक्टर्स में से कोई हम पे शक ना कर दे। और ओके, तो हम ये खोल सकते हैं। हाँ, खोल के देखते हैं। ओ भाई, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं भाई, ऐसे खोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो इलीगली होगा, राइट। तो हमें धर लिया जाएगा उसी वक्त। ओके, तो हम इस रूम के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं, मिसिंग स्क्रू ड्राइवर सैबोटाज। तो ये मेरे ख्याल से, अरे भाई ये जो पूरा का पूरा फैसिलिटी है ना, वो एक AI बेस्ड है। इसका मतलब इसका एक कंट्रोल रूम ज़रूर होगा, और अगर उस कंट्रोल रूम में हम लोचा कर दे तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा टारगेट है सोडस, Former training director at the IC. उसे मारना बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। क्या पावर सप्लाई कंसोल, इससे हम क्या कर सकते हैं? द कंसोल कंट्रोल्स द पावर सप्लाई एंड आउटपुट ऑफ द रेसिलेशन सिस्टम। टेम्परिंग इज नॉट एडवाइज्ड। ओह अच्छा, मतलब इसके साथ छेड़खानी करना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसे जाने देते हैं। और इस रूम के अंदर जाकर मैं करूँगा क्या भाई? तो क्या करूँ मैं? अभी जा सकते हैं हम सोडस के पास। इस रूम के अंदर अगर मैं जाऊँ, ओके, तो CCTV सर्वेलेंस हर जगह पे है, और तो यहाँ पे एक बंदा हम पे शक कर सकता है, ये वाला बंदा। तो ओके, तो मैं एज अ डॉक्टर भी इस रूम के अंदर नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल से इस रूम के अंदर जाने के लिए कोई और ऑथराइज्ड है जिसे हमें ढूंढना पड़ सकता है। अरे भाई, इससे दूर भागो पहले। तो क्या करे, सोडस को तो मारना है, राइट। तो जैसा कि मैंने प्लान किया है कि एक कंट्रोल रूम ढूंढना है हमें, तो
हम सेकंड फ्लोर पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सिर्फ पहुंचने से काम नहीं बनेगा, हमें सिस्टम को साबोटाज करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, नीचे चल के देखते हैं कि कुछ शायद हमारे लिए बंदोबस्त किया गया हो। ये क्या है? हम तो यहाँ पे, अरे यार ये डॉक्टर हम पे शक कर सकता है। फिलहाल ये डॉक्टर उस तरफ देख रहा है। और ये कौन सी जगह है भाई? यहाँ पे तो डेड बॉडीज रखा है। मॉर्ग टाइप है क्या? That समथिंग। is the right-sided donor heart destined for Sodas. This is what he sold out the ICA for. ओके, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो एक हार्ट है, ठीक है। और ये जो राइट हैंडेड या फिर जो भी हार्ट है, ये सोडस के लिए है, ठीक है। और सोडस ने इस हार्ट को पाने के लिए इलीगल तरीके से एक हार्ट का बंदोबस्त किया है, और जिसके लिए इसने आईसीए को धोखा दिया है या फिर जो भी ये किया है, प्रोविडेंस के साथ गया है। और एक इंटेल है, द सिस्टम सेल ट्रीटमेंट गाइड, a guide to the administrator doctor learns revolutionary stem cell treatment. Apparently the stem cells work to temporarily accelerated tissue regeneration, vastly increasing the patient chance to survival. The stem cells, okay, तो यहाँ पे stem cell treatment चल रहा है मेरे ख्याल से। ये क्या करना है? stem cell sabotage। तो मेरे ख्याल से इससे भी हम कुछ कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या हमें? रुइन स्टेम सेल्स, ओके। तो अगर मैं, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक टारगेट को मारने के लिए यहाँ पे 10 अलग अलग तरीके हैं, 10 अलग अलग तरीके मेरे भाई, ठीक है। और लेकिन हर एक तरीके से तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अगर मारना है तो किसी एक तरीके को ही हमें एक्वायर करना पड़ेगा, इंटेल गैदर करके उस इंटेल से हमें अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या डिस्गाइज, इसे डिस्गाइज लेकर क्या करूँगा मैं? इस रूम के अंदर क्या है? ओके, तो सीसीटीवीज़ को मैं सैबोटाज अगर कर, तो यहाँ पे कुछ है, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद ये कुछ इंटेल वगैरह हो। रिसर्च असिस्टेंट्स नोट, दीस आर रिसर्च नोट विद द ड्यूरेशन ऑफ हिज न्यूरोचिप्स इम्प्लांट, दे गो टू टाइम डिटेल हाउ चिप functions and how the increase decrease in doses delivery, blah blah blah, पता नहीं क्या लिखा है, डॉक्टर वाले लैंग्वेज है। और डॉक्टर्स की बात है ये, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट देख रहा होगा तो शायद कुछ पल्ले पर होगा उसके। और ठीक है, तो सिक्योरिटी सिस्टम को हमने डिसेबल कर दिया है बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से। और ठीक है गाइज, तो ओके, तो हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ भी नहीं जा सकते, तो हम जा कहाँ सकते हैं भाई? ऊपर ही मेरे ख्याल से जाने के लिए एकमात्र जगह बचा है, तो जहाँ पर भी हम पे शक बहुत सारे लोग कर सकते हैं। मैं जा सकता हूँ क्या? ओके, तो मैं सोडस के करीब तो पहुँच सकता हूँ इस ड्रेस में, इस डिस्गाइज में। तो मेरे ख्याल से ये जो सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे हम सोडस के, यहाँ पे एक कंट्रोल रूम शायद से होगा। और अरे भाई ये हम पे शक कर सकता है, तो ठीक है गाइस, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे ताला बन चुका है, कोई तो आओ बंद करो यार। सबके कानपुर में ताला लगाए क्या? यहाँ पे सारे के सारे बंदे के कानपुर पे हर ताल है भाई। तो ओके, बच गए, मौका है, जा सकते हैं। Doctor, right this way. वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बंदा हम पे शक कर सकता है और ये अंदर भी बंदे हम पे शक कर सकता है। तो इसके घूमने से पहले मुझे ओके इस रूम के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे छुप के बैठते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से अभी हम सेफ है। और भाई साहब ये क्या है? कुछ तो है ये, रोबोटिक सर्जरी कंट्रोल कंसोल। और राइट गाइस, समझ गया, इसके लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एक मैनुअल कंट्रोल है इस एआई का, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसके बदौलत हम कुछ ना कुछ तो शायद से उखाड़ लेंगे और सोडस का भी अंत होने वाला है गाइस। तो कैसे क्या करना है? ए और डी से सिलेक्ट करना है। ओके 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 ओके, इसका मतलब रोबोटिक सर्जरी प्रोसीड्यूर्स। तो ये सभी प्रोसीड्यूर्स है जिसे हमें सिलेक्ट करना है, राइट। तो ई से क्या करना है? एक्सट्रैक्ट ब्लड। इसका मतलब ई से सारा का सारा जो ब्लड है वो निकल जाएगा इसकी बॉडी से। और आप देख सकते हो जो स्क्रीन है वहाँ पर भी सर्जरी का जो आप कह लो जो मैकेनिज़्म है वो शो किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ब्लड निकाल लेते हैं, राइट। अगर हम ब्लड निकाल लेते हैं तो सोडस तो मर जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, ओके, कुछ नहीं हुआ। इंजेक्ट कार्डियक सिरिंज, ओके। तो पहले तो इंजेक्ट,
क्या भाई, कुछ तो होने से रहा। ये क्या है? ऑलराइट, ओके गाइस, तो मशीन अपना काम करना बंद कर चुकी है और मेरे ख्याल से ओके पहले मशीन जो एक्टिवेट रोबोटिक आर्म्स को हमने एक्टिवेट कर दिया है, उसके बाद इंजेक्ट कार्डियक सिरिंज। तो चलो भाई, ओके, अच्छा समझ में आया। ओके, तो कार्डियक सिरिंज जा चुका है अंदर, अभी जो सारा का सारा ब्लड है वो चूस लेते हैं, ठीक है गाइस। ओह शिट, अरे बाप रे, ओह शिट, Soda's down. ओह शिट, यहाँ पे रहना हमारे लिए बिल्कुल भी Well, that's for another time. हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं यहाँ पे रहना। और सोडस का काम तमाम हो चुका है और हम यहाँ से निकलने में ही मेरे ख्याल से हमारी भलाई है। और बहुत ही गंदी तरीके से मारा हमने सोडस को भाई, और सभी यही सोच रहे होंगे कि ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट तो ये तो मैनुअल प्रॉब्लम है, राइट? ओके, नाकामुरा-सान, आप कहाँ हैं? देखिए जाके, आपके पेशेंट की बैंड बज चुकी है। और वैसे मैं शायद चीफ डॉक्टर का डिस्गाइज यहाँ पे लेकर घूम रहा हूँ। और ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर, थैंक यू। लेकिन मैं तो किसी को मारने से रहा, तो स्क्रू ड्राइवर से मैं करूँगा क्या आखिर? ठीक है गाइस, तो ओके, तो ठीक है, तो सोडस तो गया भाई, ठीक है। बहुत ही गंदी तरीके से मारा हमने। सभी लोग ये सोच रहे होंगे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो चुका था, लेकिन नहीं। अगर आप ध्यान से सोचो तो एआई ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था कि ये मैनुअल प्रॉब्लम है भाई, इसमें एआई की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो काई एआई है, के एआई, उसकी कोई गलती नहीं है, ये मैनुअल प्रॉब्लम है। मतलब जो कांपते हुए हाथ से किया गया गलती जो कि डॉक्टर ने किया है। एजेंट 47 ने कुछ नहीं किया मेरे भाई। मार दूँ क्या? छोड़ो भाई, क्या करना इसे मार के। राइट, इस तरफ तो कुछ नहीं, इस तरफ भी लोग हैं, इसका मतलब यहाँ पर ही जो भी है यहाँ पर। और ये भाई लोग, पता है क्या है? ये है स्लीपिंग कैप्सूल्स। ये जापान में आपको हर जगह मिल जाएंगी। ये छोटे छोटे कमरे टाइप होता है जहाँ पे लोग सोते हैं और मज़े लेते हैं। स्लीपिंग कैप्सूल्स आपको मिल जाएंगी। और भाई ये क्या है? ओके, एक्सपोज वायर, तो ये तो मैं नहीं कर सकता, इलीगल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या करने वाला है ये? ऑलराइट, ओके, तो मेरे ख्याल से ये कुछ कराओके टाइप का सिस्टम है जो कि जापान में बहुत फेमस है। वाताशी नो कोकोरो के तोकी तोकी पाओ पाओ। जापानीज लैंग्वेज बहुत स्वीट है यार, सच में। लेकिन मेरा जो बांग्ला लैंग्वेज है उसके बाद आता है, क्योंकि बांग्ला दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट लैंग्वेज है। ऑलराइट, तो ठीक है, इनका नाश्ता गाना हो गया और चलते कुछ कराओके जैसा। वैसे कराओके में ना सिर्फ सॉन्ग चलता है, लेकिन यहाँ पर तो डांस कर रहा था, मैंने देखा। ठीक है, वैसे मेरा क्या करना, ठीक है, इन सब चीज़ों से। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, और निकल के अभी हमें ढूंढना पड़ेगा जो क्या नाम है उसका, मिस युकी यामाज़ाकी, जो लॉयर है सोडस की। तो थैंक यू मैन। डॉक्टर को गुड लक कहने से क्या होगा, गुड लक तो बच चुका है सोडस का, राइट? ओके, तो है कहाँ युकी यार? ज़मीन खा गई, आसमान। ओके, दूर है। चलो वेरी गुड, तो दूर है। ओके, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। कुछ तो होगा शायद इस रूम के अंदर। वैसे वो हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं है। हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि मिस युकी यामाज़ाकी तक पहुँचना। और ओके, हम डॉक्टर बने हैं तो हम शायद कहीं भी आ जा सकते हैं। वेरी गुड, मेरे पास गन्स भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस रूम के अंदर भी हम जा सकते हैं। और काई एआई बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि ये डॉक्टर है या एजेंट 47। जाके कुछ That is Yuki Yamazaki,
former lawyer अच्छा। to the Yakuza and current operative for Providence. अच्छा, तो फॉर्मर लॉयर ऑफ द यकूज़ा। यकूज़ा मतलब आपको पता होगा, जापानीज गैंगस्टर्स को कहते हैं यकूज़ा। और ये जो मैडम जी है वो अभी प्रोविडेंस का चीफ है मेरे ख्याल से, अभी ऐसा ही तो कुछ कहा मैडम जी ने, मतलब मिस डायना बर्नवुड ने। ठीक है, वो हमारी प्राइमरी कंसर्न नहीं है, हमें तो बस एक इंटेल चाहिए जिसके बदौलत हम मार पाए मिस यूकी यामाज़ाकी को। तो इसके लिए मिस यूकी के पीछे पीछे ही अगर हम घूमते हैं, मौका मिले तो टपका देंगे, या फिर ओके उस तरफ क्या है ये ऑनसेन हॉट स्प्रिंग, राइट। तो हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रही है और बहुत ही ज़्यादा फिट भी है मैडम जी। तो मेरे ख्याल से हॉट स्प्रिंग में नहाती होगी शायद। जापान में हॉट स्प्रिंग में नहाने से ये मान्यता है कि ओके, तो वहाँ पे है इंटेल, ये मान्यता है कि लोगों की जो सारी की सारी दर्द है शरीर की वो चला जाता है, और इसलिए लोग हॉट स्प्रिंग में नहाते भी है। और योगा शेड्यूल देखते हैं क्या है। Well, it certainly appears that Yuki Yamazaki is a fan of yoga. A schedule near the hot springs reveals that she has booked the trainer all day. अच्छा, Feeling flexible, 47? ऑल राइट, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कि यार अगर हाथ में मिल जाए ना तो सारा का सारा फ्लेक्स निकाल दूंगा मैं। तो ठीक है गाइस, तो अभी वहाँ जाना है, वहाँ तो कुछ तो क्या करना है अभी, क्लियर आउट द योगा एरिया। अच्छा, तो वहाँ पे योगा होने को है, तो इसके लिए उस जगह को हमें पहले खाली करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक रेंटल है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन हम यहाँ से जा तो नहीं सकते, क्या लगेगा। ओके, डिस्पोजेबल क्या कुछ है जो जिससे हम हैक कर सकते हैं दरवाजे को। जो काई एआई है उसे हम हैक कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है। हम जा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से तो निकलना है, और हॉट स्प्रिंग में हम उतर सकते हैं। ओह मैडम जी, आप तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके, तो यहाँ पे रास्ता है, और वो एक सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा हम पे शक भी कर सकता है, तो उससे बच के, और ये एक बंदा हम पे शक कर सकता है इससे भी बच के। ऑल राइट, तो वैसे वहाँ पे जाना है हमें, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे यहाँ से निकल जाते। अरे भाई, Yeah, I guess that would explain it. There's a lot of annoying. Please forgive me. ओके, ये कौन है। ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पे ये कौन सी जगह है। अरे ये तो स्पा है, छोड़ो यार, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इस तरफ जाते हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना है, शायद ये रास्ता काम कर जाए। ओके ओके ओके, यहाँ पर भी तो एक रास्ता था, राइट। मिसिंग रेंच, तो रेंच भी हमें चाहिए अभी, पता नहीं रेंच कहाँ से मिलेगा भाई। तो ठीक है, जापान के बारे में मैं क्या बोल रहा था, रेंच ढूंढते ढूंढते मैं बातें कर लेता हूँ। जापान मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मेरी प्यारी भारत के बाद मैं किसी देश को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ तो वो है जापान। ठीक है, और इसके लिए जो जापानीज सॉफ्ट पावर है उसका एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं जापान को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जापानीज सॉफ्ट पावर मतलब एनिमेज है, जापानीज कल्चर है, जापानीज लैंग्वेज है, और जापानीज ट्रेडिशंस है, बहुत कुछ है। ठीक है, अगर मैं गिनने के लिए बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो तो मैं नहीं करने वाला। लेकिन रेंच हमें कहाँ से मिलेगा भाई। और ऊपर से जो कल्चरल सिमिलरिटीज़ है जापान और इंडिया में वो भी लाजवाब है। आप देखोगे जो एज एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, शायद उस घर के अंदर हमें रेंच मिल जाए, और इस हेलीकॉप्टर के पीछे भी मेरे ख्याल से रेंच होना तो चाहिए। मैकेनिक्स तो यहाँ पे काम करते हैं। और हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जो जापानीज़ गॉड्स है, जैसे कि जापानीज़ गॉड बेंजाइतेन, अगर आप देखोगे तो जापानीज़ गॉड बेंजाइतेन बिल्कुल सिमिलर है हमारी प्यारी माँ सरस्वती से, जो कि एक हिंदू गॉडेस है। ठीक है, इसका मतलब इंडियन कल्चर और जापानीज़ कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ तक कि अगर आप गणेश जी का भी एक जापानीज़ वर्सन आपको देखने को मिल जाएगा, इंद्र जी का भी मिल जाएगा, शिवा का भी मिल जाएगा। जैसे शिवा को मेरे ख्याल से जापान में कहा जाता है दामो। हाँ भाई, दामो या फिर दारुमा, ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, तो मुझे रेंच चाहिए। रेंच हमें कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे कोई है तो नहीं, मेरे ख्याल से इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई तो है नहीं वैसे इस तरफ देखने के लिए। ओ भाई, थैंक गॉड भाई, रेंच भी हमें मिल चुका है, बहुत बढ़िया। तो अभी हमें कहाँ जाना है, हॉट स्पा की तरफ, राइट, हॉट स्प्रिंग की तरफ, राइट।
तो हॉट स्प्रिंग की तरफ चलते हैं और वहाँ पे कुछ तो करना है हमें। मैं पढ़ नहीं पाया था वैसे। ओके तो इस तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से शॉर्टकट ये सभी जगह एक ही है यार। जो कहाँ जाना, ऊपर जाना है राइट, ऊपर ही है हॉट स्प्रिंग। ओके ये रास्ता ऊपर जा रहा है और चलिए चलते हैं। एनीमे देख देख के बहुत से जापानीज शब्द आ चुका है दिमाग में, जैसे कि ओगेंकी देस्का, आरिगातो गोजाइमास, सायोनारा, जो कि काफ़ी लोग जानते हैं। सायोनारा इसका मतलब है कि अलविदा। और वैसे मैं घूम घूम के इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे तो जाना है स्पा की तरफ और मैं क्या कर रहा हूँ वैसे। ओके तो उस तरफ हमें जाना है राइट। कोई शक तो नहीं करेगा ना राइट? यहाँ पे अगर कोई शक करने लगेगा तो भाई मर जाएंगे, मौत है साक्षात। ये दोनों ही है सर, ये दोनों ही। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको मालूम नहीं? ठीक है तो ये है ये। तो अभी क्या करना है? टर्न ऑफ कोल्ड वाटर। अच्छा टर्न ऑफ कोल्ड वाटर राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, पता नहीं क्या होगा, करके देखते हैं। ठंडे पानी जाना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हॉट स्प्रिंग है। क्या करना है अभी? डिस्गाइज योरसेल्फ एज योगा इंस्ट्रक्टर। ओके तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है 62 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब लोग अभी वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। मैक्सिमम कितनी टेम्परेचर में रह सकते हैं? 30 डिग्री या फिर कितना होगा, 30-40 या वहाँ पर तो यार 62 डिग्री तक पहुँच चुका है टेम्परेचर। तो अभी हमें डिस्गाइज चाहिए योगा इंस्ट्रक्टर का। और चलिए दोस्तों जाके योगा टीचर का डिस्गाइज लेते हैं और उनको खामोश करके। ये हमारे पास एक कैन भी है जिसे हम फेंक के जो योगा टीचर है उसको बेहोश भी कर सकते हैं। और ये रहा हमारा योगा टीचर राइट। अब मुझे नहीं पता कि हिटमैन एब्सोल्यूशन में योग दर्शन का सही व्याख्यान किया गया भी होगा या फिर नहीं, वही मुझे देखना है। क्योंकि अगर ये लोग ज़रा सा भी गलती करते हैं तो मैं भाई वहीं पर पॉइंट आउट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे देश की स्वाभिमान की सवाल है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर में से एक है। जैसे कि जापान में एनिमे है, जापानीज़ कल्चर है, जापानीज़ ट्रेडिशंस है, जापानीज़ क्या कह लूँ, जो भी जापानीज़ है वो सभी यार जापानीज़ सॉफ्ट पावर के अंदर आता है। वैसे ही इंडिया में भी एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट पावर का सोर्स है, वो है योग दर्शन यानी कि योगा। ठीक है, योग तो उसका मैं बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले हमें डिस्गाइज चाहिए और डिस्गाइज लेने के लिए मेरे ख्याल से सही तो यही होगा। ओके यहाँ पर भी रेंज था, तो एक काम करते हैं, कुछ है हमारे पास। ओके रेंज का काम तो हो चुका है, तो रेंज से ही ना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे हम। ओके तो ये, अरे यार यहाँ पे लोग है, वैसे यहाँ पर बहुत लोग तो नहीं है। क्लोज कॉम्बैट हर्ट। ओके गाइस तो अभी तो बस जाके बॉडीज। ओके यहाँ पे डंप करने के लिए भी जगह है, बहुत बढ़िया। तो मैं रास्ता क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं जो योगा टीचर है हमारा जो गंजू, उसको भी मैं यहाँ पे ला सकूँ और बेहोश करके उसके कपड़े ले सकूँ राइट। हे मैन इधर आ जाओ। ओके हुआ डिस्ट्रैक्शन हुआ, बहुत बढ़िया। क्रोबार हाथ में रखते हैं, आते ही मत्था फोड़ देंगे। ठीक है ओके तो भाई साहब अभी हम बन चुके हैं योगा टीचर। तो क्रोबार ले लेते हैं और बॉडी को थोड़ा सा सरका देते हैं पीछे। ओके तो ये जगह मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन है। ओके हम यहाँ पे डंप तो नहीं कर पाएंगे और वैसे भी इसने हमें देखा कहाँ है जो कि डंप करने का खतरा है हमें। तो ठीक है क्रोबार ले लेते हैं, अंदर घुसा लो। अभी हम बने हैं योगा टीचर, कोई तो हम पे शक करने से रहा। ठीक है दोस्तों रेंज भी हमें मिल चुका है। अगर प्रॉब्लम होती है तो जो कि यामाज़ाकी का मत्था फोड़ के रख देंगे इस रेंज से। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ओके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे सभी बात करके यहाँ पे आ चुके हैं और ये वज्रासन में बैठी हुई हमारी मोहतरमा और ये यहाँ पे योग साधना करते हुए। तो ठीक है
कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? अप्रोच यूकी यामाज़ाकी। ओके, तो इसका मतलब है मिस यूकी यामाज़ाकी को जाके हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करूँ? फिर से वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा मिस यूकी यामाज़ाकी के पास। ठीक है, तो जो भी हो चलते हैं। है कहाँ वैसे हम तो अभी योगा टीचर बने, तो अभी भी यार कौन हम पे शक कर सकता है? इतना शक क्यों यार? और नंगे पैर घूम रहा है यहाँ पे हमारा एजेंट 47 टकलू। ओके, यहाँ भी शक कर सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ से तो नहीं, हमें वहाँ से ही निकलना पड़ेगा। अगर हम जल्दी जल्दी भाग के निकल जाते हैं, नहीं भाई यहाँ से हम कतई नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ से जाएंगे तो साक्षात मौत है, हमें घूम के जाना पड़ेगा पीछे से मेरे ख्याल से। तो ठीक है। अरे भाई, ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा है वो हम पे शक कर सकता है, तो वो रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते, लेना चाहते हैं। हाँ भाई, योगा टाइम। इससे आपकी मन और शरीर दोनों की शुद्धि एक साथ हो जाएगी। और मैडम जी कहाँ है? ओके, तो हम इस तरफ तो आ चुके हैं। और मैडम जी कहाँ जा रही है? हम इस तरफ आ सकते हैं ना? कोई हम पे शक तो नहीं करेगा, पंगा तो नहीं करेगा ना कोई? लगता तो नहीं। चलो भाई चलते हैं, जाके मिस यूकी यामाज़ाकी से मुलाकात करते हैं। Miss Yamazaki, I believe you booked time for a yoga lesson. Yes. To be honest, I was beginning to wonder if you're ever going to show. ओके मैडम जी, मैं आ चुका हूँ, just follow अभी आओ, me. चलिए मेरे साथ। आइए 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 मैडम जी। मिस्टर योगी ये लोग मुझे कह रहे हैं मिस्टर योगी। ठीक है, जो भी हो। ओके मैडम जी, इस रास्ते से आइए आइए आइए। ओके, तो क्या करना है? एस्कॉर्ट यूकी यामाज़ाकी टू स्पा। ऑलराइट, आ रहे हैं ना मैडम जी? ओके, आइए आइए आइए। तो यहाँ से निकल जाते हैं, राइट? ये लोग हमें अलाउ तो करेंगे नहीं? आ रही है ना? आइए 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 आइए। No. Yoga अरे class must be somewhere else. It is not through here. आइए मैडम जी, इन लोगों को। ओके, वहाँ पे रास्ता है। आइए आइए मैडम जी, आइए। स्पा के लिए रास्ता यहाँ है। वैसे आप तो यहाँ पर है, आप तो कह सकती थी उन्हें कि हमें योगा करने जाना है, तो हमें जगह दीजिए, हटिए रास्ते से, राइट? ओके, चलिए। तो हम आ चुके हैं यूकी यामाज़ाकी के साथ हॉट स्पा की तरफ। अब होगा योग लेसन, योग दर्शन, राइट? आइए मैडम जी, आइए। कहाँ रह गई? ओके, मैडम जी भी आ चुकी है, और मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है जो अपॉर्चुनिटी है। ओके, थैंक यू मिस डायना बर्नवुड। I'm okay. ऑफ कोर्स, बिल्कुल उड़ा ही देंगे यहाँ से धक्का मार के। तो हुआ ना? अभी क्या करना है हमें? I'm ready to begin. Miss Yamasaki. ओके, Very well. Let's begin. Let us begin चलिए दोस्तों। with upward facing dog when you're ready. अपवर्ड फेसिंग डॉन, ये कौन सा नाम है भाई? ये कौन सा योगा पोज है? अरे यार, तो बोलो ना, ये सूर्य नमस्कार है। अजीब है यार, अजीबो गरीब अंग्रेज़ी नाम रखते हो, और फिर हम भारतीयों को यार समझने में दिक्कत हो जाती है कि भाई ये क्या है। सूर्य नमस्कार है, राइट? जो नाम है ना, अपवर्ड फेसिंग डॉन, मतलब जो सुबह सुबह किया जाता है। नाम में भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं इंग्लिश नाम में। और दूसरा ये जो पोज है वो होने वाला है लॉर्ड ऑफ द डांस, मतलब समझ रहे हो ना? लॉर्ड ऑफ द डांस मतलब ओम नमः शिवाय, नटराजन, आदि योगी महादेव। और महादेव से ही योग शास्त्र की उत्पत्ति भी हुई है, इसलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है। Fluid movement. चलिए दोस्तों। Very good. Now, transition into Lord of the Dance. लॉर्ड ऑफ द Remember to breathe डांस। throughout. और हमारी प्यारी से मिस यूकी यामाज़ाकी पोज लेती हुई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये दोनों एक साथ। और ये जो व्यू है वो भी बहुत ही प्यारा है। और जो अगला पोज है वो है वॉरियर पोज। अब पता नहीं ये वॉरियर पोज क्या Stay है। there for a while. ओके, तो आपने एक चीज़ शायद से नोटिस किया होगा कि एजेंट फॉर्च्यून धीरे धीरे मिस यूकी यामाज़ाकी Changing को sides. एकदम Be किनारे strong. की ओर पुश कर रहा है। ओके, मेरे ख्याल से अभी गेम बजने वाला है मिस यूकी यामाज़ाकी का। ओ, उसके बाद एक और पोज है, ट्री, वृक्षासन, राइट? And अभी देखते हैं finally, वृक्षासन या फिर tree क्या है। pose. This one is tricky. Find a good spot for it.
ओके, तो वृक्षासन कर रही है मिस युकी यामाजाकी, साथ ही साथ एजेंट 47 का फिटनेस यार। चलिए जाइए, निकलिए यहाँ से, ठीक है। That's both targets Okay. down. Time to find an exit. We're done here. बहुत बढ़िया, तो काम तो हमारा बन चुका है, लेकिन हम ऐसी हुलिये में तो नहीं जाने वाले। हम एक बहुत ही बेहतरीन डिस्गाइज लेने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदों का। तो चलिए भाई, तो दोनों के दोनों टारगेट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने निपटा दिए। और शुक्र है कि वो जो पर्सनल बॉडीगार्ड था मिस युकी यामाजाकी का, वो दूसरी तरफ देख रहा था, तो वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। लेकिन अभी हम निकले कहाँ से? अच्छा, इस तरफ जाके देखते। इस तरफ तो एक दिखा रहा है, तो अरे यार ट्रेसपासिंग, मेरे ख्याल से ट्रेसपासिंग हो सकता है। हाँ भाई, योगा टीचर यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो एक रास्ता उस तरफ दिखा रहा है, एक रास्ता इस तरफ दिखा रहा है, और कोई रास्ता है, एक दो। ओके, यहाँ पर भी एक रास्ता है जो कि करीब है मेरे ख्याल से। Yeah, whatever, yoga boy. लेकिन इसके लिए घूम के जाना पड़ेगा हमें। 32 मीटर की डिस्टेंस में ही है। और एक काम करते हैं, इस तरफ चलते हैं। कहाँ पे जाए, कहाँ से निकले? ये वाला ज़्यादा करीब है हमारे, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाना चाहते हैं तो डिस्गाइज तो मेरे ख्याल से लगेगा एक। चलिए यहाँ से, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन, लेकिन हम ओके, तो ये जो हेलीकॉप्टर है, हम यहाँ से भी एग्ज़िट मार सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर से जाना ही मेरे ख्याल से ज़्यादा फैंसी और कूल रहेगा, राइट। किसी ने चीखा क्या पीछे से? पता नहीं। तो यहाँ तो पहुँच चुके हैं हम। अभी हमें जाना है, Yoga man. अगर इसका डिस्गाइज हमें मिल जाए ना। हाँ भाई, योगा मैन आएगा मुझसे योगा सीखने के लिए, क्योंकि मुझे तेरा डिस्गाइज चाहिए। चलो ना भाई, एक साथ योगा करते हैं ताकि मैं तुम्हारा डिस्गाइज ले सकूँ। ठीक है, तो सभी हमें रेस्पेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट। Turn around, 'cause you're not walking through here. Sorry. अच्छा, मिस यामाजाकी, एनीवन सी मिस यागा, यहाँ पे किसने बोला कि इस एनीवन सीन मिस यामाजाकी, मतलब कोई तो यार चिंतित है, मिस यामाजाकी को ढूंढ रहा है कोई। Are you hiding somewhere? Shit. ये बंदा इतना उतावला क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से ये वो वाला सिक्योरिटी गार्ड है जो कि मिस यामाजाकी के पास ही घूम रहा था, राइट। मतलब जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, राइट। तो मिस्टर योगी, तो यार वैसे अगर हम टोबायस रिपर का डिस्गाइज भी ले लेते हैं तो भी हमारे लिए आसानी रहेगी। ओके, यहाँ से मेरे ख्याल से निकलना है, राइट। हाँ, यहाँ से। और ये बेचारा हमारा भाई, बेचारा मिस युकी यामाजाकी को ढूंढता फिर रहा है बेचारा। तो हमने डिस्गाइज कहाँ पे बदला था? ओके, यहाँ पर भी एक एग्जिट दिख रहा है हमें, तो जा सकते हैं। ओके, नहीं, आप यहाँ पे देखे होंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे जो एआई है वो कितना ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब ड्रेस देखकर गेट खुलता है भाई, की कार्ड नहीं लगता, और बंदे को भी यार नहीं देखता ये बस। ओके, तो ये भाई यहाँ पर आ रहा है मिस युकी यामाजाकी को ढूंढने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, ये यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, और एग्जिट बिल्कुल हमारे सामने ही है भाई। अभी मैं बिल्कुल भी कोई भी पंगा नहीं चाहता, तो मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। एग्जिट मिशन, तो एग्जिट मिशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या एक कूल डिस्गाइज ले ले? छोड़ो दोस्तों। तो अभी हम इस रोपवे से जाने वाले हैं। क्या बात है भाई, ऑसम व्यू मैन, ऑसम व्यू। जाना है यार, ज़िंदगी में एक बार तो जाना है होकाइडो। वैसे हमारे देश में शिमला बहुत ही खूबसूरत जगह है, राइट। शिमला, सिक्किम, ऑल राइट गाइस। ऑसम, बहुत बढ़िया। Cutscenes. Miss Burnwood.
That's not what my ticket says. Oh boy. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders nor any other recent fiascos. ये वाला बंदा हमें मोरक्को के आखिरी सीन में दिखा था, मोरक्को वाले एपिसोड में. Killing our operatives and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. 47. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Interesting. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. तो मेरे ख्याल से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है. और भाई ये एजेंट 47 है क्या बचपन का? लग तो रहा था तस्वीर से. इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है भाई ये जो. ऑलराइट गाइस, तो हिटमैन 1 समाप्त हो चुका है. चलिए दोस्तों, तो होक्काइडो वाला लेवल भी हमने बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट कर दिया है और हिटमैन 1 सीरीज़ भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. और अभी दो तीन शायद साइड मिशंस रह गए हैं और वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे. और इसके बाद हम सीधा जंप करने वाले हिटमैन 2 की तरफ और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे हिटमैन 2 की दमदार स्टोरीज़ जो कि हिटमैन 1 के बाद आने वाला है. और उसके बाद ये जो स्टोरी है वो अंत होता है हिटमैन 3 में और उसके साथ साथ कंप्लीट होगा हिटमैन ट्रिलॉजी का पूरा स्टोरी. और लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हिटमैन 2 के साथ साथ मैं एक हॉरर गेम भी लेके चलूँ. तो और वो हॉरर गेम कुछ भी हो सकता है. और हाँ, जो भी होगा वो स्टोरी टाइप होगा क्योंकि स्टोरी टाइप हाई ग्राफिक्स गेम्स खेलने में मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना और आज के लिए इतना ही रखते हैं. और ये जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होगी, ऑफ कोर्स कंटिन्यू होगी क्योंकि मैं स्टोरी ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकता क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ एजेंट 47. और क्या होता है और एक एक कैरेक्टर्स यार मस्त है सच में. मतलब जिनको हमने मारा वो भी मस्त है. और हाँ, एक एक टारगेट्स को मारने के लिए 10 अलग अलग तरीके हैं. और मैं सोच रहा हूँ कि रिमास्टर्ड वर्जन भी कुछ बनाऊँ अगर मुझे कुछ कोई
अच्छा ढंग का मुझे तरीका अगर दिखता है मारने का अपने टारगेट्स को, तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग रिमास्टर्ड वर्जन ज़रूर बनाऊंगा। और हिटमैन 1 में ना मतलब जो किल एवरीवन ये सब चैलेंजेस मतलब बनता नहीं है। मतलब ये गेम उस तरीके से बनाया नहीं गया है कि आप यहाँ पे जो किल एवरीवन चैलेंज करो, फलाना ढिमकाना जो भी करो आप, नहीं भाई। हिटमैन सीरीज़ उस तरीके की गेमिंग करने के लिए नहीं है। हाँ, उस तरह की गेमिंग करने के लिए आने वाला है गेम्स, क्योंकि बहुत से गेम्स है जहाँ पे हमें ऑल आउट मतलब एकदम किल एवरीवन जो मोमेंटम में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो हिटमैन 1 नहीं है। हिटमैन 1, 2, 3 इनमें से कोई भी नहीं है। एब्सोल्यूशन में था, वहाँ पे आप धुआंधार फायरिंग करके खेल सकते थे, लेकिन भाई हिटमैन ट्रिलॉजी में वैसे आप खेल तो सकते हैं, लेकिन खेल के आपको मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से खेलने वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत हो गया एंडिंग देखना, और अभी हम लोग बंद करते हैं, बाहर निकलते हैं। और देखना ना भूलिएगा मेरे साथ आने वाले हॉरर स्टोरीज़, हॉरर सीरीज़, और साथ ही साथ हिटमैन 2 के स्टोरीज़ जो कि कंटिन्यू होने वाले हिटमैन 1 के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपसे मुलाकात होगी हिटमैन 1 के साइड मिशंस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I'm giving it